Good morning student. This is the third video of chapter 1 statistic collection of data standard 11th getting in this video I am going to teach method of questionnaire and characteristic of ideal questionnaire getting in last video I teach what is primary data, what is secondary data, and the collection of primary data, the method of collection of primary data, right? For example, we have seen the two methods, direct inquiry, indirect inquiry, getting, and third method are left, right? This method I am going to teach in this video, getting. This is a three method of collecting of primary data, getting. In last video I teach. Now just start our video, getting. So methods of questionnaire. Methods of questionnaire means some questions are printed in the paper and given to the survey, getting. This is called questionnaire, right? List of logical arranged question relevant to the object to the study is made. The space between questionnaire is provided for answer. A list of questions prepared in such a way that is called questionnaire, getting. This is called questionnaire. The list of questions are prepared in a paper. This is called questionnaire. The method of obtaining information using these types of questionnaire is called method of questionnaire, right? दिस टाइप्स से हम अगर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो इस मेथड को हम क्वेश्चन कह सकते हैं. द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, रेडी. क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन जो शॉर्ट होना चाहिए और ज़्यादातर टिक वाला हो तो बेटर रहेगा. सिंपल सो दैट रिस्पोंडेंट कैन अंडरस्टैंड question easily and answer them, right? The method is quite useful when field or area which the information is collected very wide, right? But ये ज़्यादातर एक सूटेबल अच्छा रहेगा, मतलब ये मेथड जो एरिया है वो क्वाइट वाइडर हो, मतलब लॉन्ग हो, बड़ा हो, ठीक है, तब ये मेथड्स वहाँ पे काम करेगा, करेंगे. Since there is a considerable saving of time cost in their method, getting, इस मेथड के जरिए आप ज़्यादातर न्यूमरेटर को सेव कर सकते हो, राइट. पे करने से टाइम बचेगा, आपका कॉस्ट भी बचेगा, राइट. इन दिस मोस्ट इकोनॉमिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, राइट. और ये मोस्ट चीप मेथड्स है, getting. क्वेश्चन में बी यूज इन डायरेक्ट इंक्वायरी एज वेल एज इनडायरेक्ट इंक्वायरी, getting. Now we can see the some characteristic of ideal questionnaire. First one, every question must be have covering letter or an appropriate title so that reader get clear idea about the purpose study, right? Every question should be clear and understandable to the reader, reading. That's why then the reader can give the properly answer to the each question. Second, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल, राइट. जो क्वेश्चन है क्वेश्चनर में वो सोचो कि कम से कम ऐसा पॉसिबल हो, ऐसा रखो. द फ्यू क्वेश्चंस हैव ग्रेट चांस टू गेटिंग ए बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स. लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्करेज द रिस्पोंडेंट एंड प्रोवाइड एक्यूरेट आंसर पर्टिकुलर टुवर्ड द एंड ऑफ क्वेश्चन है, राइट. ज़्यादा शॉर्ट जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा ग्रेटली चांस है कि वो ज़्यादा आपको बेटर आंसर मिले, राइट. बट लॉन्ग क्वेश्चनर है उसमें आपको जो रिस्पोंडर है वो थोड़ा आलस ले सकते हैं आंसर देने में, गड़ी. तो आप ट्राई करो जो क्वेश्चनर हैं उसमें कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट आंसर रखने की ट्राई करो, गड़ी. इफ़ ए नंबर ऑफ क्वेश्चन इज लार्ज, से 25 or more, it is possible divide the questionnaire into the part of ensure clarity of. अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चनर को पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक. तो ये बेनिफिट रहेगा. नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टू बी क्वेश्चनर शुड बी कंसिडर्ड विद द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, गेटिंग. जो भी क्वेश्चंस आप क्वेश्चनर में डाल रहे हो वो पर्पस ऑफ इंक्वायरी के रिलेटेड ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल, गेटिंग. क्वेश्चन शुड बी सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिसकी वजह जो रीडर है वो क्लियरली आंसर आपको दे पाए, गेटिंग. दिस शुड नॉट बी ए mere schedule in meaning. For example, if a question is, are you educated,
the respondent cannot understand the meaning of educate. Getting? Does it meaning education of secondary or higher secondary and graduate, right? अगर आप पूछते हो कि आर यू एजुकेट, तो आप उसके सामने ग्रेजुएट और 10th या 12th का ऑप्शन दो, ये आराम से वो टिक कर सके वो बंदा. गेटिंग? नहीं तो आप डायरेक्टली आर यू एजुकेट लिख करके आप सामने ब्लैंक लाइन छोड़ के, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्डर्स हो जाए मैं क्या भरूँ. बट सामने ऑप्शन दोगे तो कहीं ना कहीं वो बेटर रहेगा एक रिस्पॉन्डर आंसर देने के लिए. गेटिंग? तो ये एक बेस्ट है. तो इस तरह आप लॉजिकल क्वेश्चंस आप लगा मतलब दे सकते हो क्वेश्चनर में, जिससे रीडर जो है वो आसानी से आंसर आपको प्रोवाइड कर सके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है. गेटिंग? नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फिफ्थ, द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल. गेटिंग? The arrangement of questions should be logical. The order of the questions should be formed and specified. For example, what is your opinion about the smartphone? Right? Its question is given in questionnaire. And B, do you use smartphone? Getting? So this is a wrong type. First should be, do you use smartphone? Getting? First question this, and second question, what is your opinion about the smartphone? Getting? So this is a proper logical way to arrange the question. So question should be in proper logical way, then the reader can understand the meaning. Then the reader can give the properly answer, getting according to the questionnaire. Now our sixth is questions of sensitive nature or personal life should be avoided. For example, question related to materialistic or other source of income dependent, right? ज़्यादातर जो पर्सनल क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आप अवॉइड करो तो सही रहेगा. गेटिंग? द क्वेश्चंस आर नेसेसरी इन द सर्वे एंड assurance should be given to respondent that information provided him or her will be kept confidential and will not be used any other purpose. Getting? अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी क्वेश्चन में डालना है तो आप पहले ऊपर बताओ कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कोई और इसका यूज़ नहीं करेगा. गेटिंग? तो ये रहेगा, तो इसकी वजह से जो रीडर है वो आंसर आपको प्रॉपर्ली दे पाएगा. गेटिंग? सेवेंथ, आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी फ्री ऑफ एनी कैलकुलेशन. ठीक है? आप ऐसा क्वेश्चन पूछो जो कैलकुलेशन ना उसमें करना पड़े, राइट? तो रीडर आसानी से आपको आंसर दे पाएगा. फॉर एग्जांपल, अवॉइड द क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली. गेटिंग? तो इस तरह क्वेश्चन आप अवॉइड करें. गेटिंग? क्वेश्चन हैविंग यस और नो और मल्टीपल अल्टरनेटिव शुड बी आस्क्ड. लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादातर आप क्वेश्चन पूछने के बाद आप यस नो में पूछें और मल्टीपल अल्टरनेटिव शुड बी आस्क्ड. गेटिंग? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो जिससे रीडर को आसानी होगी आंसर देने में. बट द क्वेश्चन whose answer do not specify option should avoided, right? ऐसे क्वेश्चन जिसका ऑप्शन ना दे सको, ऐसे क्वेश्चन को आप अवॉइड करो. गेटिंग? जिससे आपको फुल रिस्पॉन्स मिलेगा क्वेश्चनर में. गेटिंग? तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चनर. गेटिंग? एंड सब स्पेसिमेन also given here, a specimen of questionnaire of collecting information of study habit of 12th standard स्टूडेंट इन गुजरात स्टेट, राइट? तो ये 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए है स्टडी हैबिट के, राइट? तो उसके लिए एक क्वेश्चन बना रखा है, जिससे आप इसको फिल करोगे तो एक सैम्पल है, आप देख सकते हो. इस तरह आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है, राइट? तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट में पूछे हैं या क्वेश्चन पूछे भी तो उसके लिए आपको सामने ऑप्शन दे रखा है जिससे आप आसानी से फिलअप कर सकते हो, राइट? विदाउट कंज्यूमिंग मोर टाइम. So this is example of questionnaire. Now you can see the questionnaire by post, right? Now we can see the questionnaire by the post, right? Questionnaire by the post means जो हमने क्वेश्चनर बनाया है, राइट? जिसमें क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर करने के बाद आपको डिस्पैच करना है बाय पोस्ट. राइट? तो क्वेश्चनर बाय पोस्ट. आफ्टर प्रिपेयरिंग ए आइडल क्वेश्चनर, it is dispatched by the post to respondent from whom the information is being collected along with a request to complete them
कंप्लीट एंड रिटर्न इट टू गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। आपको इस पोस्ट को क्वेश्चन को पोस्ट के जरिए आपको न्यूमिनेटर के पास पहुंचाना है और उसको रिक्वेस्ट करने के कंप्लीट करें और रिटर्न करें इन प्रॉपर टाइम ऑफ पीरियड, राइट, specimen time of period. Therefore, it is necessary to be send a blank envelope along with the questionnaire to the all respondent bearing the address and investigator and stamp postal paper, right। इसीलिए आपको एक एनवलप भेजना है जिससे आप वो वापस आपको भेज सकें जो भी क्वेश्चन है उसको। Since the answer of the question are to be given respondent themselves, it is essential that questions in questionnaire are clear, short and simple and relevant to self-explanatory। ये जो क्वेश्चनर है डायरेक्टली कोई इनको हेल्प करने वाला नहीं, राइट, वो खुद ही भरेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट रखने हैं, सिंपल रखने हैं कि इनको समझ आए, राइट, क्योंकि उनको कोई एडवाइस देगा नहीं, राइट, वो खुद से भरेंगे, राइट। तो शॉर्ट सिंपल रहेगा तो फटाफट वो भर सकते हैं और कोई इनको आलस नहीं आएगा, राइट। नाउ ऑर्डर क्वेश्चन शुड बी सीन थ्रू कंप्यूटर ईमेल, राइट। कंप्यूटर ईमेल के जरिए भी आप अपने क्वेश्चन रिस्पॉन्ड के बाद भेज सकते हो और मोबाइल फ़ोन ऑल्सो, राइट। एडवांटेज, नाउ वी कैन सी द एडवांटेज ऑफ क्वेश्चन बाय सेंडिंग पोस्ट। This method of collecting the data is quite useful when the field is investigation very vast, right। एरिया बहुत बड़ा है, राइट, लाइक सिटी, तो ये मेथड बहुत यूज़फुल है डेटा कलेक्शन के लिए, राइट। दिस मेथड इज सिंपल एंड प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद लेस एक्सपेंस, राइट। ये मेथड सिंपल है, राइट। आपको पोस्ट के जरिए भेजना है, ये ईमेल के जरिए भेजना है आपको क्वेश्चन है, सामने से आपको आंसर मिलेगा और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इन लेस एक्सपेंस, राइट। दिस मेथड इज इन्वेस्टिगेटर गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पॉन्डर दोस एरिया वेर माइट डिफ़िकल्ट टू रीच द पर्सनली, राइट। ये मेथड से जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, जो माउंटेन्स, राइट, जो कुछ बर्फीला एरिया है वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है रिस्पॉन्डर को, तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन आसानी से इस मेथड के जरिए मिल जाएगा, राइट। तो ये रहा एडवांटेज। नाउ वी कैन सी द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। डिसएडवांटेज भी 4 हैं, राइट। When the responder are illiterate or non-cooperative, this method is become a useless, right। अगर रिस्पोंडेंट इलिटरेट है और नॉन कोऑपरेटिव है तब ये मेथड कोई यूज़ नहीं है, राइट, यूजलेस है। इलिटरेट है तो वो फॉर्म सही से भर नहीं पाएगा, राइट, और कोऑपरेट ना करता हूँ तो फॉर्म भरेगा नहीं, राइट। तो ये मेथड यूजलेस है उस टाइम पे। समटाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट्स मे नॉट बी करेक्ट और दे मे रिटर्न इनकम्प्लीट और ए ब्लैंक क्वेश्चनर ऑफ टू द इन्वेस्टिगेटर, राइट। कभी कभी रिस्पॉन्डर करेक्ट आंसर नहीं भर सका या इनकम्प्लीट या खाली उसने भेज दिया, ये भी प्रॉब्लम देखने को पड़ सकता है। देयर में बी ए लॉस ऑफ क्वेश्चनर इन और ए डिले इन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, राइट। पोस्ट के जरिए भेजना है तो सर लॉस हो सकता है रास्ते में, या डिले इन गेटिंग बैक द इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ लेजीनेस ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स गेटिंग। There is a lack of assistance of the or a person who clarify the instruction or give the explanation of questions and maybe arise, right। क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिस्पॉन्डेंट के मन में अराइज होगा, राइट, वो उसको क्लैरिफाई करने के लिए या समझाने के लिए कोई रहेगा नहीं, राइट, जिसकी वजह से रॉन्ग आंसर हमें मिल सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो राइट, तो ये प्रॉब्लम भी हमें अकर हो सकती है, रेडी। नाउ सेकेंड इज़ क्वेश्चनर बाय न्यूमिनेटर, राइट, क्वेश्चन बाय न्यूमिनेटर, राइट। क्वेश्चनर अब न्यूमिनेटर के हाथ से हम भेजेंगे, राइट, ये मेथड हम देखते हैं, राइट। मीनिंग इन दिस मेथड न्यूमिनेटर themselves contact the responder and get the response from to the questions, राइट। दिस मेथड में जो न्यूमिनेटर है वो खुद ही क्वेश्चनर लेके जाएंगे, पोस्ट के नहीं भेज करके खुद ही जाएंगे और सारे क्वेश्चंस फिलअप करेंगे और कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है उनके मन में तो वो भी उनको सॉल्व करेंगे, राइट। द डिफरेंस बिटवीन अर्लियर मेथड दिस मेथड इज earlier method, this method is questionnaire should be sent to the respondent by post, right, where in this method numerator carry the questionnaire and personally meet the responder, right। इस मेथड में जो न्यूमिनेटर है वो खुद ही क्वेश्चनर लेके रिस्पॉन्डर के पास जाएगा। हियर द न्यूमिनेटर शुड एसेंशिएट एंड पोलाइट, हॉनेस्ट एंड एफिशिएंट, राइट। यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो पोलाइट और हॉनेस्ट और होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए।
in their work so that can exact correctness answer will be to the questions by providing relevant and supplementary information to the responder, right. इस मेथड में जो न्यूमरेटर है वो पोलाइट हॉनेस्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से उनको करेक्ट आंसर मिल सकता है क्वेश्चंस के। रेडी, द न्यूमरेटर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू क्रिएट ए फ्रेंडली एटमोसफियर। न्यूमरेटर को फ्रेंडली एटमोसफियर राइट होना चाहिए कि वो कर सके, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली आंसर मिल सके, राइट, विदाउट एंटरिंग एनी कन्वर्जेंसी और शो द डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड द रिस्पॉन्डर, राइट। तो न्यूमरेटर जो है उसको एक फ्रेंडली एटमोसफियर बनाना है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली आंसर मिल सके क्वेश्चनर में। गेटिंग, नाउ वी कैन सी द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड सेंडिंग बाय द क्वेश्चनर बाय न्यूमरेटर। गेटिंग, एडवांटेज, द कंप्लीट एंड करेक्ट मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन, राइट। पीछे मेथड में हमने देखा था कि बाई चांस कभी इन्फॉर्मेशन हमें गलत मिल सकती है या इनकरेक्ट, या कभी इन्फॉर्मेशन हमें मिले ही नहीं, बट इस मेथड में हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि इस मेथड में जो न्यूमरेटर है वो क्वेश्चन के साथ हैं। बिकॉज ऑफ दिस द आंसर विल बी करेक्ट एंड more relevant. Ready? Second, numerator can get a proper information by giving proper explanation to the respondent who are illiterate and not cooperative, right? जो illiterate responder उसको properly explanation दे करके वो फॉर्म वो क्वेश्चन है फिलअप करवा सकता है, right? Third, in this method there is no problem of loss of questionnaire, right? इस मेथड में लॉस ऑफ क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, राइट, और इनकम्प्लीट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चंस, राइट। द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन इज मोर रिलायबल, राइट। इस मेथड के जरिए जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होगा। नाउ वी कैन सी द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। समटाइम इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट एन एक्सपर्ट इन्यूमरेटर इन सफिशिएंट नंबर, राइट। कभी कभी हमें प्रॉपरली ट्रेन न्यूमरेटर नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हो सकते हैं, ये डिसएडवांटेज भी हैं। रेडी, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ न्यूमरेटर द रेम्यूनरेशन पेड टू द न्यूमरेटर इंक्रीज एंड टोटल कॉस्ट ऑफ इंक्वायरी, राइट। हम ज़्यादा न्यूमरेटर को अपॉइंट करेंगे सर्वे के लिए तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इंक्वायरी जो हम सर्वे करवा रहे हैं उसका कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। तो ये एक कॉस्ट मतलब महंगा मेथड कह सकते हैं हम। Getting? Third, it is very difficult to task to train untrained numerator, right। एक कुछ difficult भी है to task untrained numerator into the inquiry. Even after training, it is not proper to believe that there will be work skillful, honestly and efficiently, right। ट्रेनिंग देने के बाद भी न्यूमरेटर प्रॉपर्ली वर्क करे ना करे इसका कोई गारंटी नहीं होता, राइट। हैंस समटाइम इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय देम इट नॉट बी रिलायबल, राइट। कभी कभी इंफॉर्मेशन जो न्यूमरेटर लेके आता है क्वेश्चन पे वो नॉट रिलायबल, मतलब कोई एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, राइट। दिस मेथड बिकम अनसूटेबल व्हेन द रिस्पॉन्डर आर स्प्रेड ओवर द वाइड एरिया, राइट। जब एरिया बड़ा हो, फैला हुआ हो, तो ये मेथड अनसूटेबल होता है, राइट। फॉर एग्जांपल हिली एरिया या स्नो एरिया है, राइट। फिफ्थ, न्यूमरेटर हैव एडजस्ट विद द कन्वीनियंट टाइम ऑफ रिस्पॉन्डर और समटाइम न्यूमरेटर हैव विजिट 2 or 3 times सेम रिस्पॉन्डर, एज द रिजल्ट बिकम डिफिकल्ट टू फिनिश द इंक्वायरी अबाउट द स्टिपुलेटेड टाइम, राइट। अगर रिस्पॉन्डर प्रॉपर्ली आंसर ना दे रहा हो या कभी कभी घर पे ना हो, तो इसके वजह से भी जो न्यूमरेटर है उसको 2 से 3 बार फिर घर पे जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से डिले हो सकता है डेटा कलेक्ट करने में। गेटिंग, तो दिस आर द methods which can be seen collecting of primary data, right। So up till we can see the 3 methods, right, direct inquiry, indirect inquiry and questionnaires, inquiry by questionnaire, right। In inquiry by questionnaire we can see the 2 methods
questionnaire by the email post or questionnaire by the numerator, right? So these are the topic we have seen in this video. Next topic will be seen next video. Thank you for watching the video.